here we'll discuss about the pantograph, okay, and PV examination. So later on I will tell you. So you can see here, this is what is a pantograph that looks like, okay. This is known as a WHO simplified pantograph, okay. WHO simplified pantograph. This particular pantograph has been given by WHO, okay. So in this particular simplified pantograph, if you see, that is a graph, it's a graph like structure, okay. So the definition of the pantograph is it's a graphical representation of progress of labor, ठीक है. क्या बोलते हैं, it's the graphical representation of progress of labor, okay. So in this particular pantograph, you can see here there are various parts are there, like identification data, this fetal condition, labor, okay, and the interventions and the maternal condition. So ये सारा उसका parts है. But before going in detail to the parts, so let me tell you that what is the criteria that we should start plot the pantograph. So when we should start plotting the pantograph, ठीक है. So the criteria says that when the mother is in active stage of the labor, then we call it as a then we can go for a plotting the pantograph, okay. So there are two phases of the labor are there. One is a latent phase of the labor, another one is the active phase of the labor. So कब बोलना है इसको active phase of the labor? So when the cervix dilatation is more than equal to 4 centimeter. जब cervix का dilatation more than equal to 4 centimeter होगा, then we call it as a active phase of the labor. अगर cervix का dilatation less than 4 centimeter है, then we call it as a latent phase of the labor, ठीक है. So अगर हम cervix का dilatation बोलेंगे तो ये start होता है हमारा 0 से 10 centimeter. 0 means no dilatation, 10 centimeter means full dilatation, right? Fully dilatation means 10 centimeter, 0 means no dilatation, right? Okay. So we already know what is the definition of the pantograph and when we should start plotting the pantograph. The only criteria is when the mother is in the active stage of the labor, then only we can go for plotting the pantograph. And कब बोलेंगे हम mother active stage में है? जब cervix dilatation should be more than equal to 4 centimeter, okay. Then comes to the various parts of the this particular pantograph. पहले है the identification data. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? Name of the mother, then wife or the spouse name, age, right, and parity. So parity में क्या बोलेंगे हम? That is GPLA. What is GPLA? That is gravida, para, living and abortion, right. तो gravida हम किसको बोलेंगे? Yes. So total number of pregnancy. So how many times the mother got pregnant throughout her life? ठीक है, that is called gravida. कितनी बार mother pregnant हुई, right? That is called gravida. So total number of the pregnancies is known as gravida. Para किसको बोलेंगे? Yes, that is the number of past pregnancy which has crossed 28 week of gestation. Number of past pregnancies which has crossed 28 week of the gestation, right? तो क्या होगा? सपोज एक मदर तुम्हारे पास आया and now she is pregnant. She is suppose 30 weeks pregnant. So will you consider it as a para? No, because it's not the present pregnancy. It is the past pregnancy. अगर मदर अभी प्रेग्नेंट है एंड अभी अगर वो 30 वीक्स में आया तुम्हारे पास, स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अंडर पारा बिकॉज द पारा मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज विच हैज़ क्रॉस्ड 28 वीक ऑफ जेस्टेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज एक मदर तुम्हारे पास आया, ठीक है, एंड उसका जो पास्ट प्रेगनेंसी है वो 20 वीक्स में दैट लॉस्ट प्रेगनेंसी इज लॉस्ट. सो आर यू गोइंग टू कंसिडर इट अंडर पारा? नो, बिकॉज इट हैज़ नॉट क्रॉस 28 वीक्स. सपोज एक मदर का जो लास्ट प्रेगनेंसी है वो आफ्टर 28 दैट मीन्स 30 वीक में उसका IUD हो गया, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया और स्टिल बॉर्न बेबी हो गया. आर यू गोइंग टू कंसिडर इट अंडर पारा? येस, even though the pregnancy is lost but it has crossed 28 weeks. Now it is clear. So para means the number of past pregnancies which has crossed 28 week of gestation. It may be living, it may be dead, but pregnancy 28 week को cross करके, right? नेक्स्ट लिविंग. लिविंग मतलब कितना लिविंग बेबीज अभी है फिलहाल. यस. एंड एबॉर्शन. एबॉर्शन कब बोलेंगे? WHO बोलता है कि अगर 20 वीक से पहले कोई प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है देन वी कॉल इट एज अ एबॉर्शन. हो गया. देन नेक्स्ट हमारे क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर. जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है हम वो यहाँ पे डालेंगे. देन योर डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, राइट, कब मदर आया, डेट एंड टाइम. देन डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब क्या है?
बेबी इज इनसाइड द amniotic cavity. यस, तो ये जो amniotic cavity है जब मदर लेबर में आता है, दो कंडीशन हो सकता है, आइदर द मेम्ब्रेन विल बी इंटैक्ट और द मेम्ब्रेन विल बी रप्चर्ड. ठीक है, अगर कब कैसे पता चलेगा कि मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गया, तो मदर बोलेगा कि मेरा कुछ पानी जैसा जा रहा है फ्रॉम द पॉर्वाइजनली. ओके, सम दैट इज लीकिंग पॉर्वाइजनल और वाटर डिस्चार्ज पॉर्वाइजनल. तब हम देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो फॉर इंस्पेक्शन एंड देन वी कैन नो कि येस द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन हैज रप्चर्ड. अगर कुछ ऐसे वाटर डिस्चार्ज नहीं है, मदर कम्स टू यू, मे बी सी इज इन लेबर, मे नॉट बी सी इज इन लेबर, बट मदर हैज़ कम टू द लेबर रूम, ओके, इन लेबर स्पेसिफिकली. तो क्या होगा देन, टू कंडीशंस आर देयर, आइदर द मेम्ब्रेन विल बी इंटैक्ट और द मेम्ब्रेन विल बी रप्चर्ड. अगर ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हमें क्या लिखना है, कैपिटल आई. कैपिटल आई मतलब द मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट. अगर रप्चर्ड हो गया, रप्चर्ड होने से क्या होगा, पानी जैसा आएगा, वाटरी डिस्चार्ज विल बी देयर. सो व्हाट इज द कलर ऑफ द amniotic fluid? If it is water like means colorless or clear, then what I will write, capital C. Capital C means it's clear, right? अगर ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर क्यों दिखेगा, इफ द मेकोनियम हैज पास्ड. व्हाट इज मेकोनियम? फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी. अगर इट्स ए इमरजेंसी, इट्स ए ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी, अगर बेबी का स्टूल पास हो गया एंड दैट amniotic fluid कलर विल बी ग्रीनिश कलर. ओके, तो मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल M. ठीक है, अगर ये ब्लड स्टेन, अगर रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर अगर है amniotic fluid का कलर, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ द ब्लीडिंग माइट बी देयर. सो हमें क्या लिखना है, दैट इज कैपिटल B, दैट इज ब्लड स्टेन. ठीक है, सो दो कंडीशन है amniotic cavity का, आइदर द बैग इज इंटैक्ट और द बैग इज रप्चर्ड. अगर इंटैक्ट है हम लिखेंगे कैपिटल I. अगर ये रप्चर्ड हो गया देन वी हैव टू सी द कलर ऑफ द amniotic fluid. इफ इट इज क्लियर then capital C. If it is meconium stain, it is capital M. If it is blood stain, then it is capital B. हो गया. तो कब हुआ ये, टाइम एंड डेट हमको यहाँ पे लिखना है, राइट. नेक्स्ट कम्स योर फीटल कंडीशन. ठीक है, फीटल कंडीशन में क्या आएगा, द फीटल हार्ट रेट. ओके, सो व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट? यू सी हियर, ये दोनों ब्रॉड लाइन्स है and it is starting with 120 and it is starting with ending with 160. 160 में end हो रहा है. तो the normal fetal heart rate is 120 to 160 beats per minute. ठीक है, so if the baby's heart rate is coming more than 160 or less than 120, तो हम क्या बोलेंगे इसको, fetal distress, right? हम क्या बोलेंगे इसको, fetal distress. Fetal distress means if the heart rate of the baby is either more than 160 or it is less than 120. In both way it is not normal, right? So what is normal? It should come in between, the readings or the measurements should come in between these two black thick lines, right? Okay, so हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट देन सर्कल, डॉट देके सर्कल, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, राइट. नाउ कम्स योर amniotic fluid. जैसे कि मैंने बोला amniotic fluid का दो कंडीशन हो सकते हैं, आइदर इट विल बी इंटैक्ट और इट विल बी रप्चर्ड. अगर इंटैक्ट है तो मैं यहाँ पे कैपिटल I लिखूँगी. C मीन्स इट्स क्लियर, राइट. ओके, नेक्स्ट कम्स योर लेबर. ये जो लेबर का पार्ट है, यहाँ पे आता है योर सर्वाइकल डायलिटेशन और डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, जब हम पार्टोग्राफ प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, वी विल ऑलवेज फर्स्ट प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर. ये वाला पार्ट पहले करेंगे, देन विल गो अप, देन विल गो डाउन. ये सारे पहले नहीं होगा, पहले होगा तो सर्विक्स डायलिटेशन. ठीक है, ये जो सर्विक्स डायलिटेशन है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई क्रॉस. ये जैसे है, ओके भाई क्रॉस हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. ओके, एंड यहाँ पे देखो दो लाइन से, वन इज ए अलर्ट लाइन, अनदर वन इज ए एक्शन लाइन. यहाँ पे अलर्ट लिखा है, यस, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शन. So alert means be alert. That means something wrong may happen. So we have to be alert. Action means it's time to take action, right? So as this I already mentioned you that this particular pantograph is telling you that whether a mother's labor is progressing normally or not. ठीक है, so ये हमें यहाँ से पता चलेगा अगर सर्विस का डायलिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है. ठीक है, ठीक से हो रहा है मतलब कैसे बोलेंगे, अगर ये प्राइमरी मदर है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो इसका जो सर्विस डायलिटेशन होगा वो 1 सेंटीमीटर पर आवर करके होगा. जितना घंटा एक घंटा जाएगा तो 1 सेंटीमीटर पर आवर करके होगा. अगर ये मल्टी ग्रेविडा है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी है एंड ये सेकेंड और थर्ड टाइम सी इज गेटिंग प्रेग्नेंट, सो इसका जो सर्विस का डायलिटेशन होगा वो कितना होगा, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर पर आवर. ठीक है, ये जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर करके. तो ये है नॉर्मल. अगर इसके अलावा अगर स्लो जा रहा है देन इट कुड बी अ एबनॉर्मल. फास्ट जा रहा है दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल, राइट. ओके,
ठीक है. सो ये हो गया. देन नेक्स्ट कम्स योर कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस, जब हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू चेक फॉर ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. सपोज यू आर इन द लेबर रूम एंड मदर इज देयर, ओके, एंड सी इज इन लेबर, ऑफ कोर्स सी इज हैविंग द लेबर पेन. सो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द मदर एंड वी विल पुट either लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑन द मदर्स एब्डोमेन. ऐसे मदर के एब्डोमेन में ऐसे हाथ रखेंगे. ठीक है. एंड व्हाट वी विल डू, एंड फॉर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू चेक इट, फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट तक वी हैव टू कीप पुटिंग योर हैंड लाइक दिस ऑन द मदर्स एब्डोमेन. तो हम क्या चेक करेंगे, वी आर चेकिंग दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द मदर्स एब्डोमेन इज कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट, और टाइटनिंग, कितना टाइम्स तुमको टाइटन फील हो रहा है मदर का एब्डोमेन, द हाउ मेनी टाइम्स यू आर फीलिंग टाइटेंड ऑन द मदर्स एब्डोमेन. 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम, 4 टाइम. सो मैक्स टू मैक्स इट बिकम्स 5 टाइम्स. ठीक है. 10 मिनट्स में और कितना ज़्यादा होगा, अप टू मे बी 5 टाइम्स. यस. तो अब हम क्या करेंगे, वी आर चेकिंग इट फॉर, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसमें हमें 2-4 चीज़ें याद रखना है. नंबर 1, ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है हम कैसे चेक करेंगे, वी आर पुटिंग आवर हैंड ऑन द मदर्स एब्डोमेन फॉर फुल 10 मिनट्स. पूरा स्टैंड स्टिल, यू बी देयर फॉर 10 मिनट्स. इन द 10 मिनट्स व्हाट यू आर गोइंग टू चेक, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स एब्डोमेन इज टाइटेड. नंबर 1. नंबर 2, ये जो टाइटनिंग आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम जो आ रहा है, तो ये हाउ मेनी, फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ परसिस्टिंग. दैट मीन्स अगर पहली बार एक कॉन्ट्रैक्शन आया तो ये कितना देर तक रहा, अभी आया एंड अभी चला गया, इमीडिएटली इट जस्ट वेंट अवे, और कुछ देर तक रहा और ज़्यादा देर तक रहा, राइट. तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इफ़ द कॉन्ट्रैक्शन स्टेज फॉर लेस देन 10 सेकेंड, राइट. इफ द कॉन्ट्रैक्शन स्टेज फॉर लेस देन 20 सेकेंड, देन व्हाट वी कॉल इट एज अ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड देके रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. एज यू कैन सी हियर हम ऐसे डॉट करेंगे. दैट मीन्स इट विल बी शोइंग दैट इट इज़ अ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. सपोज द कॉन्ट्रैक्शन स्टेज फॉर 20 to 40 सेकेंड, और थोड़ा देर रह रहा है, सो 20 to 40 सेकेंड, देन इट इज़ कॉल्ड ए मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन. यस. एंड कितना देर, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई द स्ट्राइप्स. ओके. सो स्ट्राइप्स है, दैट मीन्स इट्स अ मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन, राइट. अगर ये मोर देन 40 सेकेंड्स रहा और थोड़ा देर रहा, ठीक है, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, राइट. इट्स कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फुल्ली वी हैव टू डार्कन द बॉक्स. क्लियर. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्शन जो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड हाउ लॉन्ग दिस इज परसिस्टिंग. हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम मीन्स द फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, right. And how long it is persisting can be, if it is less than 20 seconds it's a mild contraction, that is dot you have to put and it will show that it's a mild contraction. 20 to 40 seconds is a moderate one, so stripes we have to give. More than 40 seconds is a strong contraction and we have to fully darken the particular box. In this photograph as you can see, these small box are here, so these are the 30 minutes or half an hour time. ये जो दोनों बॉक्स मिला के, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है दैट इज़ अ 1 आवर टाइम. ये है 1 आवर, ये है 1 आवर, एंड दिस स्मॉल बॉक्स आर द 30 मिनट्स टाइम. क्लियर. ओके. एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, और एक चीज़ क्या है हमें याद रखना है, दैट इज़ वी आर चेकिंग इट एवरी 30 मिनट्स, राइट. दैट मीन्स मैं 9 बजे गया मदर के पास, 9 से 9:10 तक मैंने ऐसे हाथ रखा, देन आई चेकड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, देन आई केम बैक, राइट. अगेन आई विल वेंट फॉर 9:30 में जाना है, 9:30 से 9:40 तक फिर से मुझे देखना है. Are you understanding? Every 30 minutes we have to check for the contraction. In that every 30 minutes we are going to check it for full 10 minutes, right. तो हमें क्या चेक करना है, we are checking for the frequency, how many number of contractions and how long it is persisting. Each contraction how long it is persisting. Clear everyone? नेक्स्ट कम्स योर ड्रग्स एंड IV फ्लूइड. सो इन लेबर रूम अगर मदर को हम कोई नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं या फिर कोई रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन दे रहे हैं, या फिर वी आर गोइंग टू गिव एनी ड्रग्स like injection oxytocin for uterine contraction, then what you have to write, like we can write like injection oxytocin is given in 500 ml of the normal saline or ringer lactate solution at the rate 40 to 60 drops per minute. तो जो भी है we have to write it here in the intervention plan, right. And the last one in the photograph is a maternal condition. ये जो maternal condition में 3 चीज़ें आता है. what are the 3 things? pulse rate of the mother, blood pressure of the mother and the temperature of the mother. टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में लिखेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे,
राइट। एंड ये जो पल्स रेट है हम इसको ऐसे डॉट देके राउंड करेंगे एज लाइक द फीटल हार्ट रेट। एंड ये जो ब्लड प्रेशर है हम इसको एरो अप एंड डाउन जस्ट देंगे। दिस इज हाउ वी शुड रिप्रेजेंट these all things, ठीक है। इन दिस होल पार्टोग्राफ देर आर ओनली 3 things आर देयर दैट वी आर गोइंग टू मेजर एवरी 4 आवर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम एवरी हाफ एन आवरली करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें 4 आवरली करेंगे? सर्विक्स डायलेटेशन, नंबर 2 इज़ योर ब्लड प्रेशर, नंबर 3 इज़ द टेम्परेचर। ये तीनों चीज़ें हम एवरी 4 आवरली करेंगे। और बाकी जो सारे चीज़ें हैं जो भी है यहाँ पे वो एवरी 30 मिनट्स में करेंगे। अगेन अगर मदर का कोई हाई ब्लड प्रेशर का डिजीज़ है देन वो हम अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर वो करेंगे, मे बी हाफ एन आवरली, मे बी 1 आवरली। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है then the frequency is 4 hourly, only 3 things: surface dilatation, blood pressure and temperature. बाकी और जो सारी चीज़ें हैं we are going to check in every 30 minutes, right? ठीक है। So here we'll see one pantograph, one case study, and I am going to plot it here. So next to that maybe I will post this in your group so that you can plot. Here there are 3 case studies are there. So I want all of you to plot this, and tomorrow you can bring it to me and submit it, right? ठीक है। हम एक एक पढ़ते जाएंगे देन हम प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है? राधा, वाइफ ऑफ गंगाराम एंड सी इज़ 26 ईयर ओल्ड। सो हम प्लॉट करते जाएंगे। तो पेशेंट का नाम है राधा, स्पाउस इज गंगाराम एंड सी इज़ 26 ईयर ओल्ड, राइट। एंड सी इज़ थर्ड ग्रेविड है, ठीक है। थर्ड ग्रेविड मीन्स हम क्या लिखेंगे? G3 लिखेंगे, ये सर नो, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेजिंग दिस वन। सो हम क्या लिखेंगे? G3 लिखेंगे, दैट मीन्स कैपिटल 3। सी वॉज एडमिटेड एट 5 AM ऑन 11th जून। 11 जून को वो 5 बजे हमारे पास आया टू द लेबर रूम विथ द कंप्लेंट्स ऑफ लेबर पेन, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ उसका लेबर पेन? 2 AM, लास्ट नाइट 2 बजे रात को उसको स्टार्ट हुआ। देन सी केम टू अस एट 5 AM ऑन 11th जून। तो जब वो आया हर मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड, मेम्ब्रेन उसका रप्चर्ड हो गया था। कब हुआ रप्चर? एट 4 AM, 4 बजे सुबह उसका मेम्ब्रेन रप्चर हुआ। फिर वो 5 बजे आके हमारे पास पहुंचा इन द लेबर रूम। सी हैज 2 चिल्ड्रंस, दैट इज़ 5 year and 2 years। तो उसका अगर 2 चिल्ड्रंस है देन क्या होगा? P विल बी 2 क्योंकि ये तो दोनों पास्ट में है। देन L ऑल्सो विल बी 2 एंड A विल बी 0, नो एबॉर्शन, राइट। सो ये जो 2 बच्चा है उसका मतलब 37 वीक्स के मतलब 28 वीक्स के पहले हुआ है, बाद में कैसे बात बच्चा कब होगा? 20 से पहले हो जाएगा। हाँ। What I will say, use your mind, use your head. Okay, all right. You understood? Yes. So 37 is storm. So after 37 ही मतलब डिलीवरी अगर हो जा रहा है तो 20 वीक से पहले जाया जाएगा बच्चा, तो will he be live? Okay, so that is the thing, right? सो हियर इज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑलरेडी भी डिस्कस्ड। सो यहाँ पे क्या हुआ? मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। तो फिर देखना है क्या है? और सर्विक्स वॉज 2 सेंटीमीटर डायलेटेड, ठीक है, 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो मैंने कब बीबी किया? 5 o'clock। 5 o'clock में हमने बीबी किया एंड देखा कि उसका जो सर्विक्स है वो 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो क्या हम अभी पार्टोग्राफ करेंगे? अभी पार्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज पार्टोग्राफ स्टार्टेड व्हेन द मदर इज इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, जो कि होता है मोर देन 4 सेंटीमीटर। यस, तो अभी 2 सेंटीमीटर है तो मुझे नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी। तो मैं अभी क्या करूँगी? अगेन 4 घंटा वेट करूँगी। आई विल वेट फॉर अनदर 4 hours। तो कितना हो जाएगा? 5 बजे के बाद 4 घंटा होने से 9 o'clock हो जाएगा। अगेन आई वेंट टू द मदर एंड आई डिड द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, राइट। तो मैंने क्या देखा कि द सर्विक्स डायलेटेशन इज 5 सेंटीमीटर। तो अभी क्या मैं करूँगी? येस, सो आई विल डू द पैटोग्राफ और आई विल डू द प्लॉटिंग। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फर्स्ट प्लॉटिंग शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सर्विक्स डायलेटेशन। यहाँ से ही पहले करेंगे, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स करना है, राइट। दो इट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट प्लॉटिंग होगा दैट विल बी ऑन द अलर्ट लाइन। द फर्स्ट प्लॉटिंग विल ऑलवेज बी ऑन द अलर्ट लाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द फर्स्ट प्लॉटिंग विल ऑलवेज बी ऑन द अलर्ट लाइन। तो ये कितना मुझे मिला? इट्स 5 सेंटीमीटर। तो मैं देखूँगी कि 5 सेंटीमीटर कहाँ पे क्रॉस कर रहा है टू द अलर्ट लाइन, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? यू सी दिस इज द 5 सेंटीमीटर लाइन, यस। एंड ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है अलर्ट लाइन? यहाँ पे समहाउ हियर, यस। तो मैं यहाँ पे क्रॉस देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने 9 बजे जो
जो किया पीबी एग्जामिनेशन, तब अगर मुझे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मिलता तो मैं कहाँ पे प्लॉट करता, समहाउ हियर, बिकॉज इट शुड बी ऑन द अलर्ट लाइन. यस. अगर मुझे 6 सेंटीमीटर मिलता है तो मैं कहाँ पे करता, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कहाँ पे क्रॉस करें, समहाउ हियर. यस. तो मैं यहाँ पे करता. अगर 7 सेंटीमीटर होता है तो समहाउ हियर. यस. तो मैं यहाँ पे करता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. तो अगर ये मेरा 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो ये जो पहले का पार्ट है यहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं जो भी प्लॉटिंग करूँगी इसके आगे प्लॉटिंग करूँगी. अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होता तो इतना तक मेरा कुछ काम नहीं होता, और अगर 4 होता तो मैं ये लाइन में पूरा प्लॉटिंग करता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी विल गो विद द केस स्टडी. दैट मीन्स इट्स अ 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे हो गया. सेकेंड में क्या दिया इसमें देखो, सी हर 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स and each lasting for 20 to 40 seconds. 20 to 40 seconds means it's a moderate contraction. Moderate contraction, moderate को हम कैसे करते हैं, स्ट्राइप्स करते हैं. तो मैं क्या करूँगी अभी देखो. ठीक है. यू सी. तो यहाँ पे मैंने दे दिया. देन यहाँ का राइट साइड में मैं लिख दूँ 9M. 9M में मैंने किया. देन आई विल जस्ट गो डाउन हियर. क्या बोलता है ये, 3 कॉन्ट्रैक्शंस आर हियर. तो मैं क्या लूँगी 1 2 3 बॉक्स आई विल टेक. देन आई विल जस्ट टाइप इट आउट. यस. ओके. देन क्या बोलता है ये, FHR इज 120 बीट्स पर मिनट. ये सेम लाइन पे आई विल गो अप. देन आई विल डू हियर द प्लॉटिंग. सो इट्स अ 120 बीट्स पर मिनट. और क्या दिया, द मेम्ब्रेन हैज रप्चर्ड एंड amniotic fluid इज क्लियर. ठीक है. तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगी. देन आई विल राइट C. ठीक है. BP इज 120 पर 70. ये लाइन में मुझे फिर से नीचे जाना है 120 एंड 70. राइट. देन हाँ टेम्परेचर इज 36.8. यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 36.8 लिख देना है. हो गया. देन पल्स रेट इज 80. तो यहाँ पे 80 करके दे देना है. हो गया. फिर क्या करूँगी मैं क्या बोली, 3 चीज़ें हैं जो कि 4 घंटे में एक बार करेंगे, बट बाकी सारी चीज़ें हमें हाफ एन आवरली करना है. तो हम प्लॉट करते जाएंगे. यहाँ पे देखो 9:30 में मुझे FHR क्या मिला, 120 मिला. अगेन 136. देन 140. अगेन 130. सो ऐसे ऐसे मिलता गया. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट जॉइन ऑल द लाइन्स. आई शुड मेक श्योर दैट इट शुड बी इन बिटवीन दीज 2 लाइन्स. अगर ये उधर जा रहा है ऊपर या फिर नीचे, दैट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल. राइट. देन सेम टाइम में मुझे क्या मिल रहा है, यूसी कॉन्ट्रैक्शंस क्या मिला. अगेन 3 कॉन्ट्रैक्शंस ईच लास्टिंग 30 सेकेंड. 30 सेकेंड मीन्स मॉडरेट. अगेन 3 कॉन्ट्रैक्शंस 35 सेकेंड. दैट इज ऑल्सो मॉडरेट. Again 3 contractions 40 seconds. 40 seconds also moderate. Now 4 contractions for 45 seconds. तो मैं 4 बॉक्स ले लूँगी 1 2 3 4 एंड 45 मीन्स स्ट्रॉन्ग. तो मैं क्या करूँगी, पूरा डार्कन करूँगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. अगेन 4 contraction. अगेन 45 सेकेंड. अगेन ये भी पूरा डार्कन जाएगा. हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन 4 contraction 50 सेकेंड. ये भी पूरा डार्कन जाएगा. ठीक है. ओके. सो ऐसे ऐसे आई हैव टू गो ऑन. देन क्या मिलेगा मुझे, पल्स रेट 80. अगेन 80 80 88 84 लाइक दैट. देन आई विल जस्ट जॉइन इट. amniotic fluid पूरा क्लियर आ गया. देन अगेन फिर 4 घंटा हो जाएगा. तो कब होगा, 1 o'clock हो जाएगा. तो मैं फिर से पीबी करूँगी. तो यहाँ पे 9 o'clock हो गया. देन 10 11 12 एंड ये है 1 o'clock का लाइन. ये वाला पूरा लाइन है. दिस इज 1 o'clock. 1 o'clock में मुझे क्या मिला, सॉर्बिक्स इज फुल्ली डायलेटेड. फुल्ली डायलेटेड मीन्स 10 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करूँगी, अभी ये जो 1 o'clock का ये जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द 10 सेंटीमीटर लाइन. दिस इज द 1 सेंटीमीटर 1 o'clock लाइन. सो इट इज़ क्रॉसिंग हियर. यस. तो इसे यहाँ पे क्रॉस करना है. और ये 2 लाइन को मैं ज्वाइन करूँगी. तो ये क्या है, अलर्ट लाइन से पहले हो जा रहा है. ठीक है. अगर 1 o'clock में भी मदर का 6 सेंटीमीटर होता है तो मैं क्या करती, 6 सेंटीमीटर ये वाला 1 o'clock लाइन को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, somehow here. That means it's crossing the alert line. It is not normal. I should take some action. That means इसका जो डायलेटेशन है वो बहुत ही स्लो जा रहा है. 4 घंटा हो गया फिर भी 1 ही सेंटीमीटर प्रोग्रेस किया है. That means it's not normal. ठीक है. So I have to take some steps. So this pantograph is telling you that whether it is progressing normally or it is not progressing normally, whether you should take some steps or not. Right? So anyway, it is normally progressing. Right? And amniotic fluid is clear at that time. So C लिख दिया मैंने. देन BP इज 110/70 हो गया मेरा. देन क्या हुआ, 120 को जस्ट 20 मिनट्स बाद स्पॉन्टेनियस बर्थ ऑफ ए लाइव फीमेल इन्फेंट वेइंग 2.85 kg. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए लाइव फीमेल चाइल्ड ऑफ 2.85 kg एट 1:20 PM डिलीवर्ड नॉर्मल वाइजनल डिलीवरी एंड बोथ आर डूइंग वेल. देन वो मैं इसको ऐसे बॉक्स करती हूँ.
एंड दिस कंप्लीट्स माई पैटोग्राफ. ठीक है, इतना ही मुझे करना है इन दिस पर्टिकुलर पैटोग्राफ. डियर एवरीवन, यस, एनी डाउट यू वांट टू आस्क?